بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر میر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بفکوش آفیشیل۔ ناظرین، میں نے کل اپنے ویلاگ میں دو باتیں چھوڑی تھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ ایک تو وہ خط جو جسٹس منیب اختر نے لکھا تھا، اس میں جو اہم نکات تھے، سوالات انہوں نے اٹھائے تھے آئینی، ان کا ذکر کرنا تھا، لیکن وہ صرف ٹائم کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ عمران مینٹلی طور پر ان سے بہت زیادہ آگے ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں تک وہ ان سے آگے ہے۔ خان صاحب کو جب اطلاع ملتی ہے کہ یہ 7-8 تاریخ کو آئینی ترمیم پہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے، دوبارہ حملہ کریں گے، دوبارہ کوشش کریں گے، شب خون مارنے کی کوشش کریں گے، تو خان صاحب نے جو کہا ہے کہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، ڈی چوک میں ہوگا۔ ناظرین، یہ فائنل راؤنڈ، اگر میری بات آپ یاد رکھیے، اگر امید تو ہے مجھے 100%، جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں وہ بھی 99% یہی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ضرور ہوگا۔ اگر عوام ڈی چوک میں، یہ فائنل ہے، فائنل کال پہ اگر خان کا ہاتھ پکڑتی ہے، خان کی کال پہ لبیک کہتی ہے، خان کی کال پہ باہر نکلتی ہے اپنے لیے، خان کہہ رہا ہے میرے لیے مت نکلو، اپنے لیے نکلو، اپنی آزادی کے لیے نکلو، اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو، پاکستان کے لیے نکلو۔ اگر نکلتے ہیں تو پھر پاکستان کی حقیقی آزادی بالکل یہ سامنے نظر آ رہی ہے، بالکل ود ان نو ٹائم۔ جیسے نجم سیٹھی صاحب، جو کہ ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، نواز شریف کے بڑے دوست ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان نے یوتھ کا ہاتھ پکڑا ہوا، ایسے ہاتھ پکڑا، اور یوتھ نے خان صاحب کا ایسے ہاتھ پکڑا ہوا، ہینڈ ٹو ہینڈ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہے بھی ایسے ہی۔ اگر عوام نکلتی ہے، ڈی چوک میں فائنل راؤنڈ ہے، اس فائنل کال پہ اگر عوام نکلتی ہے، لبیک کہتی ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی۔ پھر پاکستان اپنی حقیقی آزادی حاصل کرے گا، ہمارے بچے آزاد ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے، ہماری اس دنیا میں کوئی وقت ہوگی، ہماری عزت ہوگی، ہماری کہی گی باتوں کی ایک حیثیت ہوگی۔ اور ایک جو خان صاحب نے کہا تھا کہ ملتان میں، فیصل آباد اور میاں والی میں احتجاج ہے، خان صاحب احتجاج کی کال دی ہے، اور این ٹائم پہ صبح احتجاج ہے، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ملتان کا جو احتجاج ہے اس کی جگہ چینج کر رہے ہیں، وہ بہاولپور میں ہوگا، اس کی وجہ پاکستانی ٹیم آ رہی ہے، انہوں نے کنٹینر لگانے ہیں، انہوں نے شیلنگ کرنی ہے، انہوں نے فسطائیت جبر کرنا ہے، انہوں نے ظلم کرنا ہے، تو یہ اس لیے یہ چیزیں انہوں نے مقام چینج کیا ہے۔ اس حالت میں بھی جب کو خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو ان کی ٹوٹل جد و جہد ہے 2 سال کی، جو انہوں نے فسطائیت ظلم برداشت کیا ہے، یہ اس کے صبر ملنے کا ٹائم ہے، پاکستان کو آزادی حاصل کرنے کا ٹائم ہے، پاکستانی عوام آزاد ہوں گے، حقیقی جمہوریت آئے گی، پاکستان اور آرمی ایک پیج پہ ہوں گے، پی ٹی آئی اور آرمی ایک پیج پہ ہوں گے، یہ اس کا ٹائم ہے۔ لیکن خان صاحب نے پاکستان کا سوچتے ہوئے یہ احتجاج کی جو جگہ ہے یہ انہوں نے بہاولپور کر دی ہے۔ اور ناظرین، شاہ جہان 83 سالہ بزرگ عورت پشاور سے آتی ہے، خان کی محبت میں آتی ہے اور دعائیں دیتی ہے، وہ بار بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی تسبیح پہ پڑھتی ہے اور خان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ناظرین، کیا وہ عورت دہشت گرد کر سکتی ہے؟ وہ عورت کس کو لاٹھی مار سکتی ہے؟ کس کو پتھر اٹھا کے مار سکتی ہے؟ ایسی عورت تو چل بھی نہیں سکتی 10 قدم۔ پتہ نہیں وہ کیسے آئی ہوگی، کتنی محبت ہے اس کے دل میں خان کی، انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پوری دنیا پورا پاکستان میڈیا تھو کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے ظلم کیا ہے، فسطائیت کی ہے، جبر کیا ہے، ٹھیک ہے،
यंग जनरेशन है उस पर करें। और ये जो औरतों को नाज़रीन इनकी तस्लील की जा रही है, जो यंग औरतें हैं, लेडीज हैं, उनको मर्द एहलकार हाथों से पकड़कर घसीट कर लेकर जा रहे हैं। सिमाबिया ताहिर की बात कर रहा हूं, यह बाइस शर्म है। और खान साहब की बेगम बुशरा बीबी बड़ी नेक पाकीज़ा परहेजगार औरत है, उनके साथ जो उन्होंने किया, उनका सर से दुपट्टा उतारते हैं, उनके सर के बालों की तलाशी लेते हैं। नाज़रीन वो बालों में क्या छुपाएगी? एटम बम छुपाएगी? इतनी नेक, मकसद सिर्फ इनका तजलील करना है। तो एक तरफ वो 80 साल से ज्यादा 83 साल की शाहजहां, उसमें बुशरा बीबी, समाबिया ताहर, ये एक तवील लिस्ट है, इनके जुल्म की इंतहा है। तो जब जब जुल्म बढ़ा है, खुदा की तरफ से एक मूसा जरूर है। खान इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, वो जेल में है, उस पर जुल्म की इन्होंने इंतहा का बहुत ज्यादा मसालम कर रहे हैं खान साहब पे। और खान साहब ने टीक चौक पे फाइनल कॉल दी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो रिहर्सल है कल की, जो एहतजाज, पुरअमन एहतजाज है, इन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बनाना है, इस पर जुल्म, जबर, फस्तायत करनी है। फिर वो जो अली अमीन गड्डापुर का वो जो बेलचे वाला है, उसे इन्होंने क्लाशनकोव का बट बनवाना है। नाजरीन ये सोचने वाली बात है। तो आते हैं, और एक बड़ी इतलाहत आई है, पता नहीं इसमें सच है झूठ है, लेकिन बड़े बाखबर जराए कह रहे हैं कि फैसल वाडा साहब जो सेनेटर है, आपको पता वो किसके सेनेटर है, इमरान खान के खिलाफ एक अहम मिशन पर इस वक्त दुबई में है। मिशन यह है कि एक ताकतवर खातून को इमरान खान के खिलाफ वादा माफगुआ बनाकर वापस लाया जाए। फैसल वाडा ने अपने हैंडलर से वादा किया है कि वो मसूफा को अपने साथ जरूर वापस लाएंगे। इसने कहा है कि वो इस हाल में जाल में फंसा, उसे इस जाल में फंसा लेगा। मसूफा और वाडा इस वक्त दुबई के महंगे तरीन इलाके में मुज़ाकरात कर। ये जो मसूफा है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे कहने से आप सब समझ गए होंगे, और जैसा सोशल मीडिया पे ये आजकल वायरल है, आप समझ गए होंगे मसूफा कौन है। और उनका बुशरा बीबी से बड़ा करीबी तल्लक है, और इन्होंने उसके साथ भी फस्तैयत की है, जुल्म और जबर किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और अलीमा खान साहब ने कहा है कि खान साहब ने कहा है कि फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा, इसकी तारीख का जल्द ऐलान कर देंगे। ये 7 तारीख को है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे है, जो जराए बता रहे हैं, वो 4 तारीख का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि डी चौक में पहुंचना है हर सूरत में, चाहे इसके लिए 2 दिन लग जाए। और आप बात करते हैं आर्टिकल 63A में कि समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुनीर अब तक क्यों नहीं बैठे, उसकी वजह उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीर अख्तर ने आर्टिकल 63A की समाअत करने वाले बेंच में शामिल न होने के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइजल ने जस्टिस मुनीर अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीर अख्तर ने खत में लिखा है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। खत के मतन के मुताबिक 63 नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बैंक के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। यह कल की बात है। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर के जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत शामिल तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा। उन्होंने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि उनके खत पर एक मीम चलाई जा रही है। चली खत में जस्टिस मुनीब की जानब से कहा गया कि कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। वो अब बेंच की सरबराह क्यों बने, वजूहत सामने लाई जाए। उनका वजूहत सामने नहीं है। लार्जर बेंच में इडहाक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया।
19 जुलाई के जजेस कमेटी में डाक जजेस के अमूर तय कर लिए थे। यह दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खिल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। मौजूदा हालात में 63A नजरसानी के समात के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूं। मेरा खत 63A नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना समझा जाए। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पहले कमेटी में अकलियत में थे। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस, ये जो बड़े अहम सवाल है, ये काजी साहब कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ साहब ने कहा कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता वो बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसे से जेर इल्तवा है। 63A का मुकदमा बड़ा आम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। एक बार बेंच बन चुका तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा किया कि बेंच कल दोबारा बैठे। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा है कि कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समात वही बेंच करेगा। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस जाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर 9 होगी। उम्मीद है वो बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में आज केस की समाअत होगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कल आज 11:30 बजे तक मुलतवी है। नाजरीन, ये जो दोनों तरफ से खिंचाव है, लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा धमाका होने वाला है, कोई बड़ा टकराव होने वाला है। अल्लाह ना करे ये सूरत हाल पैदा हो। आईनो कानून के मुताबिक इसे आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और उम्मीद है ये इंशाल्लाह सारे मामला खुश उसलूबी से असर होंगे। और एक कुरान की आयत मुझे याद आ रही है, बिस्मिल्लाह, उसका कुछ हिस्सा है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। एक तदबीर, एक प्रोग्राम दुनिया वाले बनाते हैं, जहान वाले बनाते हैं, और एक फैसला होता है जो मेरा रब्बुल आलमीन का है, और होता वही है जो मेरा रब चाहता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी है, मेरे रब ने इसकी बेहतरी फरमाई है और इसकी बेहतरी होगी। नाजरीन, आप सबसे इल्तमास है, खान हक सच पे रास्ते पे है, उसका साथ दे, इमरान को सपोर्ट करें। इसमें ही हमारी बला है, इसमें हमारी बका है, इसमें हमारी फलाह है, इसमें हमारे बच्चों की और पाकिस्तान की फलाह है। निकलो खान के लिए और निकलो पाकिस्तान के लिए। अगले भी लाभ तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा।